Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are doing the newspaper and several articles of 23rd March 2024. India now eyes Africa for critical minerals. First of all, critical minerals is very important for the fourth industrial revolution. If India wants to meet the target of the Amrit Bharat and Panch Amrit target 2070 for being a carbon neutral nation, or being self-reliant in the areas such as deep tech, artificial intelligence, EV, solar, etc. That is why critical mineral procurement and extraction is needed. For that, various other institutions are taking participation. For example, Kabil in the mm, in the several countries such as Argentina, it has procured blocks of lithium in Argentina. It also extracting resources in Chile regarding the copper, and it is also looking for the lithium resources in Australia. Similarly, India is now eyeing for the critical mineral resources in Africa. Important countries: Ghana, Congo, Mozambique, Namibia, etc. ऑफशोर माइनिंग इसको बोलते हैं. इंडिया में लिथियम ब्लॉक्स कहाँ मिलता है? तो जम्मू कश्मीर रेशाई डिस्ट्रिक्ट, वहां पर 5 मिलियन टन का अप्रोक्सीमेशन हुआ था लिथियम आयन. Top Bhutan honor for PM. Bhutan is important neighbor for the India due to its strategic location between the China and India. उसी से रिलेटेड एक इश्यू हुआ था 2017, डोकलाम क्राइसिस को बोलते हैं, ट्राई जंक्शन एरिया between the Bhutan, India and China, where China was trying to enter into the Doklam region. Why Doklam region is important? Because the region is just at the tip of the chicken neck corridor of India. Chicken neck corridor सिर्फ 25 kilometers है, तो it becomes imperative for the India to secure that position so that the northeast is connected with the Indian subcontinent, Indian hinterland. तो उसके अलावा भी अदर एरियाज जहाँ पर फोकस होता है, फॉर एग्जांपल एनर्जी. भूटान इज लीडिंग कंट्री इन द कार्बन सिंक. कैसे एफॉरेस्टेशन को यूज कर सकते हैं फॉर द मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज. डिजिटल कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म पर्सपेक्टिव में भी भूटान इम्पोर्टेंट है. एंड जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल बीबीआई, उसी से इंटीग्रेशन हो सकता है पूरे रीजन का. और फिर माइंडफुलनेस सिटीज का भी कॉन्सेप्ट आता है गिलिफूम. तो इट हैज सेड दैट इंडिया एंड भूटान रिलेशनशिप is unique, time tested, and Bhutan also stands to benefit when India succeed, and we feel assured about the future of our neighbor. India and Bhutan should collaborate in several areas. उससे दोनों का फायदा है for the people. Then next, yesterday we discussed about the Supreme Court staying on the recent amendment in the IT Act 2024, where fact-checking unit like PIB was mandated to fact check every social media post, or social media post has to comply with the recent amendment. तो उसमें बोला जा रहा है कि fact check unit which is censoring the online content or any business of the central government, it has been criticized as a judge, jury and executioner. FCU क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और अमेंडमेंट के कारण एक उनका उसके पीछे जो रीजन था वो सही था, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनीज दे आर नॉट डूइंग मच टू टैकल द मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन इन द सोशल मीडिया स्पेस.
और रिसेंटली जैसे 2024 इलेक्शन में आने वाला है, तो सोशल मीडिया रोल 19 के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाएगा। दैट इज वाई मिसलीडिंग और फेक एंड फॉल्स न्यूज नीड्स टू बी टेकन डाउन और नीड्स टू बी करेक्टेड एटलीस्ट। लेकिन ऐसे तरीके से नहीं होगा। इट नीड्स टू बी fact check needs to be very comprehensive, broad, to include other stakeholder as well, as we have discussed. On the face of it, it is violating the Article 19 principle. That is why अभी उस पर स्टे किया। Narrow resolution UN should have heeded. So regarding that, in 2022, Pakistan has moved a resolution regarding the establishment of the International Day to combat Islamophobia. Several countries, including India, objected that सिर्फ इस्लामोफोबिया दुनिया में सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ हो रहा है, उसके आप एक्शन ले रहे हो और अलग से रिलीजन पास करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिलीजन। अगर आपको करना ही है विद अ मॉरल इंटेंट, विद अ गुड इंटेंट, देन यू शुड फॉलो द प्रिंसिपल रिलीजियस फोबिया। सबके लिए सेम होना चाहिए, चाहे वो ज्यू रहे क्रिश्चियन, चाहे वो इस्लाम रहे, चाहे वो हिंदू रहे, चाहे बुद्धिस्ट रहे। क्योंकि जो ओआईसी है, it is the only country, only organization in the world that is talking about the Islamic values, and it also criticized several countries on the issue of minorities. ऐसा कोई ओआईसी ओसी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन एसोसिएशन कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू एसोसिएशन, खाली सिर्फ वही है। लेकिन उसमें उसमें एक डुअलिटी क्या है कि वो अपने माइनॉरिटी से में जो करते हैं, फॉर एग्जांपल अहमदीज को उन्होंने नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, हंड्रेड्स वर किल्ड। शियाइट और सुन्नी के बीच में क्राइसिस होता है, वहां पर ओवैसी का कोई रोल नहीं आता है, वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू प्रमोट टॉलरेंस विद द माइनॉरिटी ऑल्सो। तो ये दिखाता है कि जो यूएन के अंदर में भी कैसे वेस्टेड इंटरेस्ट और एक रिलीजन के हिसाब से जो तोड़ने की बातें होती है वो किया जाता है बाय दैट सेपरेट, बाय द वेरियस रेडिकल बॉडीज जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड। तो इंडिया का स्टैंड यही रहा है कि अगर आपको करना ही है तो आप सबके लिए बराबरी दीजिए। रिसीवर इलाहाबाद हाईकोर्ट टर्म्स यूपी मदरसा एक्ट एज अ वायलेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। यूपी मदरसा बोर्ड जैसे एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो 27 28 है। 28 अंडर आर्टिकल 28 आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते टू द चिल्ड्रन। कहाँ कहाँ पे? स्कूल एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। अगर सिर्फ और सिर्फ एडेड है, एडेड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है, तो आप नहीं दे सकते हैं। सिर्फ एडेड है और या फिर सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड है, वहां पर आप वॉलेंट्री रहेगा। तो ये जो मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 है, इट इज डिक्लेयर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि उन्होंने बोला कि इट इज वॉयलेशन ऑफ द सेक्युलरिज्म। क्यों? स्टेट हैज नो पावर टू क्रिएट अ बोर्ड फॉर द रिलीजियस education or establish a board for the school education only for the particular religion and philosophy associated with। तो आर्टिकल 28 वायलेट हो रहा है इसमें। और 30 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू establish एंड एडमिनिस्टर देयर ओन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी दोनों होते हैं, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, यहाँ रिलीजियस का बात हो रहा है। लेकिन उसमें भी स्टेट इंटरवीन कर सकते हैं, उनका सिलेबस, उनका रिक्रूटमेंट, टीचर स्टाफ एक्सेट्रा सब, प्रोवाइडेड दैट देर इज नो मैल देर इज मैल एडमिनिस्ट्रेशन, नेपोटिज्म, करप्शन, या फिर वहां पर कुछ ऐसा बात किया जा रहा है जो इट थ्रेटिंग द पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, मोरालिटी एक्सेट्रा। अदर देन दैट दे आर फ्री टू रिजर्व द सीट्स फॉर द माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, या फिर वो और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना करिकुलम करिकुलम बना सकते हैं, स्टाफ को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट हैज नो पावर। वो तो कुछ कर सकते हैं खुद से,
30 के अंदर में, लेकिन स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो खुद से बनाए एक पर्टिकुलर रिलीजन के बोर्ड। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि जो भी एग्जिस्टिंग मदरसा है इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द स्कूल, एग्जिस्टिंग स्कूल। कैसे किया गया? वाइल अदर स्टूडेंट आर गेटिंग एजुकेशन इन मॉडर्न सब्जेक्ट साइंस फिलोसफी से लेकर के बाकी जगह चीज, लेकिन मदरसा अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ बोथ आर्टिकल 21 21, 21A और 21 में क्या था? राइट टू लिबर्टी एंड डिग्निटी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लाइफ एंड लिबर्टी में भी पहले लिबर्टी का कॉन्सेप्ट नैरो था, एक ही गोपालन केस में निर्माण के में लिबर्टी कॉन्सेप्ट बढ़ गया, उसमें सब चीज इंक्लूड आना स्टार्ट हो गया। तो उसी के बाद से फिर हेल्थ, इन्वायरमेंट, एजुकेशन भी आया 1993 में, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया, 2003 आया, जिसमें राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A ऐड हुआ, जिसमें बोला गया 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज में स्टेट मैंडेटरी है कि उनको प्रोवाइड करे एजुकेशन। तो 21A और 21 दोनों वॉयलेट हो रहे हैं इसमें। इसका आगे एक और डिटेल में दिया है, वो देख लो। बचा पाकिस्तान से, में भी डिस्कस अबाउट द पाकिस्तान। पाकिस्तान वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। इंडिया कनेक्शन, क्यों पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है? 3 एरियाज। इंडिया को एड पहुंचाना पड़ता है अफगानिस्तान के थ्रू, तो पाकिस्तान से नहीं हो पाता है वो। पूरे ग्वादर ग्वादर पूरे चाबहार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इन ईरान, उसके बाद फिर अफगानिस्तान जाते हैं। उसके बाद अगर सेंट्रल एशिया आना है तो पाकिस्तान के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा सकते। तीसरा चीज को, जो ईस्ट एंड वेस्ट का डिवाइड है वो पाकिस्तान के बीच में बैरियर है। तो पाकिस्तान को अगर यूज करना है और उससे कोलैबोरेट करेंगे लॉन्ग टर्म में, तो दोनों कंट्री को फायदा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि उनका जो स्टैब्लिशमेंट है इट इज मोस्टली एंटी ड्रिवन, इंडिया ड्रिवन। लेकिन अगर देखा जाता है पाकिस्तान में, उससे बड़ा चैलेंज क्या है? प्रेजेंस ऑफ द रेडिकल एलिमेंट अलोंग द बॉर्डर ऑफ द पाकिस्तान इन नॉर्दर्न साइड, उसको फाटा बोलते हैं। वहां पर जैसे अफगानिस्तान में तालिबान है, तालिबान मतलब कि देवबंदी थॉट, रेडिकलिज्म, और वो बोलते हैं कि ओवरऑल जो भी स्ट्रक्चर होना है सोसाइटी का ट्राइबल होना चाहिए, इसलिए एमिरेता नाम है उसका, एमिराते, रादर देन पहले रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, अभी इस्लामिक एमिराते ऑफ अफगानिस्तान है। तो ट्राइबल बॉडी पॉलिटी होना चाहिए, विमेन राइट्स वहाँ का, माइनॉरिटी का राइट्स तो कम, और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो ऊपर होना चाहिए इस्लामिक फंडामेंटल बेस पे चलना चाहिए। लेकिन वो तो अफगानिस्तान में है। तो ये पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम है कि जो तालिबान अफगानिस्तान के लिए बना था, वैसे ही तालिबान पाकिस्तान के लिए भी है। उसका नाम है TTP। तो उसको पाकिस्तान बोलते हैं कि इट इज़ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो तालिबान वाले पाकिस्तान तालिबान जो अफगानिस्तान वाले तालिबान है, उनको पाकिस्तान बोलते हैं दे आर द ग्रुप ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो इंडिया का स्टैंड रहा है कि टेररिज्म इज टेररिज्म, देयर इज नो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। लेकिन अब पाकिस्तान ऐसा करता नहीं था। अब लेकिन जब असैसिनेशन हुआ, फिर किलिंग हुआ, उसके बाद फिर इतने डेथ हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान हैज बीन क्रिटिसाइज कि पाकिस्तान could not nurture snake with the expectation that they would bite only its enemy। वो सोचते हैं कि तालिबान विल बाइट ओनली सोवियत यूनियन, रशिया, चाइना, इंडिया और US, दे विल नॉट बाइट पाकिस्तान। तो एक एग्जांपल है। तो TTP और इसमें क्या डिफरेंस है, ये चर्चा कर लीजिए। अब कमिंग बैक टू द भूटान स्टोरी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को सिविलियन अवार्ड मिला, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और कहाँ कहाँ पर कोलैबोरेट कर सकते हैं? वी डिस्कस हाइड्रो, टूरिज्म, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, बेस है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ द रीजन, BBIN एक्सेट्रा। तो उसके साथ साथ टेक्नो सिटी, हमेशा हम लोग जब बात करते हैं माइंडफुलनेस सिटी, ग्रीन, हैप्पीनेस, लेकिन योगा, इस पर बात करते हैं, लेकिन टेक्नो सिटी भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। उसके लेके IT सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। इंडिया कैन एक्सपोर्ट अ लॉट।
आईटी फील्ड खोल सकते हैं, बीपीओ खोल सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वहां पर। देन नेक्स्ट, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पासिस टेस्ट। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सो दैट जो रिसोर्सेज यूज होता है लॉन्च व्हीकल में वो वापस से इसको रीयूज कर सके। 3R इकोनॉमी का पार्ट है। दूसरा, कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तीसरा, कि जो क्रू मॉडल है जो भेजेंगे गगनयान में, वापस से वो लैंड कर सकते हैं, अगला फिर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेस एक्स भी यूज करते हैं अपने जो फाल्कन और बाकी सब सीरीज के लॉन्च व्हीकल है, तो उससे फायदा हो। स्पेस रिटर्निंग व्हीकल जिसको बोलते हैं। देन नेक्स्ट, enforcement directorate, minister of finance, it have the power from the PMLA, FEMA, FCRA etc. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इट हैज डायरेक्टेड द ईडी कि टू टू फर्निश ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग टू द अक्यूज एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। मतलब कि आप जब अरेस्ट करते हो तो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनर, और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन इन अ रिटन फॉर्मेट, ताकि ड्यू प्रोसेस में उल्लंघन नहीं हो। और जो आर्टिकल 21 में आता है कि ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड इन द अरेस्ट। 20 में बात होता है कन्विक्शन में भी ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड, उसी की बात हो रही है। आर्बिट्रेज कम होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रीडिंग आउट अ रीजन फॉर द अरेस्ट अक्यूज डज नॉट फुलफिल द मैंडेट आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 दो टाइप का होता है, प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव। तो ईडी जब अरेस्ट करते हैं किसी को कि वो क्राइम करने वाला है, तो वो हो जाएगा एक तरह से प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव, ऑलरेडी देर इज केस गोइंग ऑन, एफआईआर हो चुका है तब, और कन्विक्शन हो चुका था प्यूनिटिव, तो उसमें भी ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। उसमें बात किया कि 22 के अंदर में इट अमाउंट्स टू द वॉलेशन ऑफ आर्टिकल 22 और सेक्शन 19(1) ऑफ पीएमएलए, पीएमएलए एक्ट 2002। ईडी का पावर बढ़ गया था 2023 में, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप रिटेन फॉर्मेट में दीजिए ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। नाउ कमिंग बैक टू द भूटान, तो उसमें इंडिया विल सपोर्ट भूटान 5,000 करोड़ to 10,000 करोड़ टिल 2029। और इंडिया भूटान ने सेवरल इंक साइन किया, लिंक साइन किया 7 अग्रीमेंट ऑन एनर्जी, फूड सेफ्टी, स्पेस रिसर्च, स्पेस कोलैबोरेशन एक्सेट्रा। इंडिया का सपोर्ट तो है, गैलीफू माइंडफुलनेस सिटीज विजनरी है, लेकिन इंडिया चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म में टेक्नो सपोर्ट मिले। जैसे कोई एग्जाम्पल नहीं है, कनेक्टिविटी रेल का दिया हुआ है यहाँ पर एग्जैक्ट, कोकराझार गैलीफू, वाटरवेज नेविगेशन ब्रह्मपुत्र। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें भी भूटान इज अमंगस्ट वन ऑफ द टॉप कंट्रीज या बेटर परफॉर्मिंग कंट्रीज। तो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, गवर्नेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस पे फोकस करते हैं। हम्म, कार्बन सिंक भी ज्यादा है, तो इंडिया सीख सकता है कि एफोरेस्टेशन कैसे यूज कर सकता है। कैसे जो लॉन्ग ओनली टर्म विजन है कार्बन। इंडिया का 2030 तक कि क्रिएटिंग ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन सिंक इन इंडिया, वो कैसे मीट कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक और है कि एमसीसी जब अंडर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप कोई भी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, बिग अनाउंसमेंट। उसे अनाउंसमेंट करना है तो यू हैव टू टेक परमिशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैड रिसीव परमिशन फ्रॉम द ईसी टू मेक अनाउंसमेंट ऑफ 10,000 करोड़ ग्रांट। तो अर्थ आवर, अर्थ आवर इंस्टीट्यूशन एक बार देखो, WWF करते हैं अर्थ आवर। इसका मीनिंग होता है 1 घंटे के लिए लाइट ऑफ करते हैं, इसको अर्थ आवर कहा जाता है। 31 March 2007 इट स्टार्टेड, एंड अर्थ आवर इज अ सिंबॉलिक जेस्चर फॉर कंजर्वेशन। उससे कुछ लाइट उसे एक अवेयरनेस है रिगार्डिंग पीपल कि आप लाइट ऑफ करें, आप सोचिए उसके बारे में कि कहाँ कहाँ पर इंटरवीन कर सकते हैं,
कैसे अपने जो लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, ताकि जो सस्टेनेबिलिटी है सिर्फ लिखने के लिए नहीं रहे, आप अपने जिंदगी में ला रहे। राइट फ्रॉम कि कंजर्विंग ऑफ द वाटर, आप बकेट इस्तेमाल कर रहे हो नहाने में, या फिर आप ग्रे वाटर को रीयूज कर रहे हो, या फिर बॉन्ड खरीद रहे हो ऑनलाइन, सोशल बॉन्ड, अवेयरनेस फैला रहे हो, लोगों को बता रहे हो, वो भी एक आपका ड्यूटी है। तो और था, बट WWE है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका नाम। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए इंडिया भूटान के बीच में, तो 10,000 करोड़ दिया गया पहला। सेकंड, इंडिया ने बात किया कि माइंडफुलनेस सिटीज पे काम करेंगे इंडिया में भी। तीसरा है कि कोकराझार ग्लेफुर रेल लिंक, वहाँ प्रोजेक्ट। और दूसरा, ब्रह्मपुत्रा को यूज किया जाएगा ऐसा वाटरवे, डिजिटल कनेक्टिविटी, टेक्नो सपोर्ट दिया जाएगा, और पीपल टू पीपल टाइज। ये बात हुआ मियावाकी और बाकी मेथड। इंडिया, यहाँ पे इंडिया भूटान के बीच में जो क्रॉसिंग्स की बात करते हैं, तो देर इज ओनली वन लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग जो कि लोकेटेड है चुखा में। तो चुखा इज बिटवीन लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान। लैंड। When we discuss about the Miyawaki method of the urban forestry है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बायो फेंसिंग। तो दिल्ली कॉर्पोरेशन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD, इट इज यूजिंग बायो फेंसिंग यूजिंग मियावाकी टेक्निक। और एक तरह से किया है द 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, बेस्ड ऑन द रिजल्ट एंड वर्क विल बी टेस्टेड ऑन। और उसके बाद ही फिर प्लांटेशन स्टार्ट होगा। द प्रोजेक्ट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन अंडर डायरेक्शन ऑफ द NGT। हम्म। तो इसका मतलब कि 5 to 10 मीटर्स एरिया है अराउंड द 3 लैंडफिल, उसको ग्रीन बेल्ट बनाया सकता है, ताकि जो गार्बेज से पोल्यूशन निकले या पोल्यूटेंट निकले, वो ट्रैप हो जाए उस ग्रीन बेल्ट में। उससे जो ओवरऑल पोल्यूशन है वो थोड़ा कम होगा इन द नियर बाई डिस्ट्रिक्ट और नियर बाई रीजन। लीचिंग कम रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि ड्रेन विल हैव टू बी डेवलप्ड बिफोर द बिगनिंग ऑफ द वर्क, डैमेज नहीं हो रूट्स का। कन्वेंशनल मेथड क्या होता है कि इट रिक्वायर्स 10 years टू मैच्योर। मियावाकी मेथड सिर्फ 5 years लगता है उसमें। जो क्या करना पड़ता है उसके लिए सॉइल टेस्टिंग करना पड़ता है, अप्रोप्रिएट बायोमास मिक्स करना पड़ता है सॉइल के अंदर में, तो इंटरवीन करना पड़ता है बाय द ह्यूमन। मिक्सिंग ऑफ हस्क, मन्योर, बायोमास, एक लेयर हटाना पड़ता है रॉ सॉइल का, और वापस से फिर उसको मिक्स करके फिल करना पड़ता है, तब प्लांट कैन ग्रो इजिली और जल्दी 5 years में सिर्फ। तो प्रेजेंटली 2 एकड़ में किया जा रहा है मियावाकी टेक्निक। इंडिजिनस सैपलिंग को यूज किया है फॉर करवंद, लेमन, कदम, गुलर, नीम, गुआवा एक्सेट्रा। ये तो एग्जांपल यहाँ पे ये है। इसमें बोल हाँ, सकते हैं कि एक ओवरऑल लैंड फिलिंग साइट है, उसके चारों तरफ बायो फेंसिंग बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि लैंड फिलिंग से लीचिंग और उसका जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, वो ट्रैप कर ले। बाकी जो चारों तरफ जो बनेगा मियावाकी मेथड से अर्बन फॉरेस्ट्री, तो दोनों काम करेगा। तो एक तो ऑक्सीजन हाँ। जनरेट करेगा, कार्बन सिंक रहेगा, और तीसरा एयर पोल्यूशन को भी रोक सकता है। बोलो। हम्म तो ये एक टाइप का सोल्यूशन है जब हम लैंडफिल साइट प्रॉब्लम की बात करते हैं, बायो फेंसिंग। सेकेंड, हम देख रहे हैं दिल्ली में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, दैट इज इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स। वहाँ पे हम डिजाइनिंग जो लैंडफिल साइट की उस पे वर्क कर रहे हैं कि प्रॉपर सेग्रीगेटेड तरीके से वेस्ट सेग्रीगेशन जो हम बात करते हैं उसको इम्प्लीमेंट और फॉलो किया जाए, और फिर वहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी साथ में कैप्टिव तरीके से वर्क करें। हम्म। ठीक है। इन्फॉर्मल सेक्टर, India manufacturing base, it is mostly driven by the informal sector. MSME, 63 million MSME, only 14 million business have taken GST तो overall अगर बोले 45% of manufacturing base it is coming from the MSP, और 90% informal sector है।
एम्प्लॉयमेंट इंडिया में। इसलिए ज़रूरी है कि मोस्टली इन्फॉर्मल सेक्टर को आप फॉर्मलाइज करिए टू द इंटरवेंशन बाय द स्टेट, कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, जिसमें अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट आता है रिगार्डिंग द जस्टिस। कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे? तब सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्सेशन लॉ, ई फेस कलेक्शन, इंसेंटिव पीएलआई डीएलआई, या फिर जो रिड्रेशल है उसको आप इफेक्टिव दीजिए और अच्छे तरह से बना सकते हैं, ई गवर्नेंस में काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप सपोर्ट देंगे एमएसएमई को, जैसे विवाद से विश्वास वन, वो एमएसएमई से रिलेटेड था। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा है तो आप सपोर्ट दी। तो लेकिन बात हो रहा है कि इसमें स्केलिंग भी करना चाहिए, स्केलिंग टेक्नोलॉजी फोकस करना चाहिए एक्स्ट्रा। अपग्रेडेशन ऑफ स्किल एंड इम्पार्टिंग ऑफ स्किल इज इम्पोर्टेंट एरिया, तभी जाके मिडिल इनकम बन सकते हैं कंट्री। और टोटल इंडिया में इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात करते हैं तो उसमें से 96% स्मॉल कंपनीज हैं जो एमएसएमई से आती हैं, एंड 42% इंडिया के एक्सपोर्ट्स अगेन एमएसएमईज कंट्रीब्यूट करते हैं। मोर देन 50% ऑफ जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय एमएसएमई। तो इसलिए सेक्टर और इसका फॉर्मलाइजेशन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम्म। ठीक। मिल्की वे बिल्डिंग ब्लॉक्स फाउंड, नेम शिवा एंड शक्ति। तो उसमें लिखा हुआ है कि मैक्स प्लान इंस्टीट्यूट जर्मनी बेस्ड है, दे आइडेंटिफाइड टू मिल्की अर्लीस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, उसको नेम किए शिवा एंड शक्ति। These appear to be a remnant of two galaxies that merged between 12 and 13 billion years ago, with an early version of the Milky Way. तो ये दो दिया कलर्ड पार्ट, इसका मतलब दो बन करके एक बना। शिवा एंड शक्ति कलर्ड पार्ट है, इट मर्ज्ड विथ एन अर्ली वर्जन ऑफ द मिल्की वे। उनके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन एनर्जी था, एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट था, वो मिक्स होकर के अपना जो मिल्की वे बनते हैं एक तरह से। दे आर टू अर्लीस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मिल्की वे एज रिकॉग्नाइज्ड टुडे, शिवा एंड शक्ति। अब ग्रीन क्रेडिट प्लान एग्जाम्पल इंडिया में अगर है कैंपा, और उससे रिलेटेड एक लैंड बैंक भी है और एक क्रेडिट मैकेनिज्म भी है, किसके अंडर में, जो हाल फिलहाल में फॉरेस्ट कंजर्वेशन राइट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट आया उसमें भी है। लेकिन ग्रीन क्रेडिट प्लान कैसे उसको बढ़ाए, कैसे अवेयर करे और सेंटर क्या कर रहे हो उसको देखते हैं। सेंटर इज ऑफरिंग इंसेंटिव फॉर द इंडिविजुअल फर्म्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनवायरमेंटल गोल। पहला है कि फॉरेस्टेशन ऑफ द डिग्रेडेड प्लॉट्स। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द सेंटर लास्ट ईयर। जो ट्रेडेबल क्रेडिट है, किसी को अगर पैसा है लेकिन जमीन नहीं, किसी पास जमीन है पैसा नहीं है, तो आप उस पर जो डिग्रेडेड लैंड है उस पर आप ग्रो कर दीजिए, फार्मर्स कर सकते हैं। उसे रिक्लेमेशन ऑफ लैंड भी हो सकता है और एडिशनल इनकम जनरेशन हो सकता है। एम ऑडिबल? एक सेकंड। हाँ श्योर। वो अटक गया था लैपटॉप। तो इसमें बोल सकते हैं कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जीसीपी लॉन्च्ड बाय द सेंटर लास्ट ईयर, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, फार्मर्स के लालच से एडिशनल इनकम जनरेशन हो सकता है, और बाकी जिसके पास पैसा है वो एक तरह से सोशल सीएसआर फंडिंग कर सकते हैं, या फिर उनका जो लॉन्ग टर्म विजन है विद रिस्पेक्ट सोसाइटी ट्रस्टीशिप मॉडल वो दे सकते हैं। तो कैसे हो रहा है, व्हाट इज जीसीपी एंड ग्रीन क्रेडिट कैसे जनरेट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंट्री है, मार्केट बेस्ड है। वन ग्रीन क्रेडिट विल बी अवॉर्डेड पर ट्री, पर ट्री के लिए एक क्रेडिट है, और मिनिमम डेंसिटी ऑफ 1100 ट्रीज पर हेक्टेयर एक तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा और अवार्ड दिया जाएगा। इट विल बी क्रेडिटेड, गारंटेड आफ्टर द स्टेट यूटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इशू सर्टिफिकेट।
वो करेंगे, मतलब कि यूटी के और स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि यहाँ पर हुआ है, फिर आप क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा क्रेडिट। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो एफपीओ, टू जनरेट एडिशनल क्रेडिट, और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इंक्लूड हो सकते हैं, बिजनेस इंडिविजुअल, सबको ये आ सकते हैं इसमें जीसीपी में। कैसे हो सकता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद से बोलेंगे कि ये सब जगह लैंड है, यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट है, स्क्रब है, वेस्ट लैंड है, इसको अंडर लाना है ट्री प्लांटेशन में। अब जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो करिए जा करके। तो एनी पर्सन अंडर लुकिंग टू अंडरटेक ट्री प्लांटेशन, जैसे वॉलेंट्री बेसिस पे होता है, तो कर सकते हैं जा करके। हु विल कैरी आउट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, receiving the application or a detailed proposal for tree plantation, administration will issue a demand note to the applicant कि आप कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में, पेमेंट हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर विल डायरेक्ट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कंप्लीट द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज विद इन 2 years, 2 years ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट। उसके बाद फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चेक करेंगे जा करके, असेस करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, और फिर अवार्ड करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ग्रीन क्रेडिट टू द एप्लीकेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। एक क्रेडिट मतलब एक ट्री, वैसे वैसे अब क्रेडिट जो मिलेगा वो फिर जाकर आप ट्रेड कर सकते हो प्लेटफॉर्म पर। एक ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री किया जाएगा उसमें। इट इज ए डेटाबेस फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड इशुएंस ऑफ द ग्रीन क्रेडिट, और उसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हो फॉर द कंपेंसेंट्री फॉरेस्ट ए फॉरेस्टेशन। अब इसका कॉन्सेप्ट ग्रीन क्रेडिट को जोड़ दिया जाता है कैंपा फंडिंग 2016 के अंदर में। लैंड बैंक, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसमें, उसमें भी बात हुआ कि जब ईआई का बात करते हैं उसमें आप क्रिएट के फॉरेस्ट आप बेच दो, डाइवर्जन और नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज के लिए तो आप बना सकते हो। ईएसजी, इसमें भी रोल आएगा, सीएसआर फंडिंग भी रोल आएगा। तो क्या सिर्फ ट्री प्लांटेशन इसमें है कि और भी एरियाज है? तो उसमें और भी एरियाज है, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सब में। तो ओवरऑल ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टू इंक्लूड द सिटीजन इनटू द लाइफ मिशन, to give incentive to the private sector and corporate cooperative for meeting the पंच अमृत टारगेट 2070। तो ग्रीन क्रेडिट प्लान इसको डिटेल में डाल दो। और यूएनसीसीडी की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो दिस वाज अडॉप्टेड इन 1994, और ये सोल ओनली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है व्हिच लिंक्स एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। हम्म। तो दिस इज और इम्पोर्टेंट। और हम्म, अब इसमें दो की एरियाज है। पहला है कि झारखंड, गुजरात एंड राजस्थान, ओनली 3 स्टेट है जिसका 50% से ज्यादा डिजर्टिफिकेशन हो चुका है। डेटा लिख लो एक बार। एंड इसरो का एक मैप है, एटलस है, डेटिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस। वो देखते हैं, बार बार एसेस करते हैं विद द यूज ऑफ सैटेलाइट, कहाँ का डिग्रेडेशन बढ़ते जा रहा है। उसके जो डेटा होंगे वो भेजेंगे जो रिस्पेक्टिव स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाकी सबको, ताकि वो पता लगा सके कि कहाँ पर डिग्रेडेड लैंड है, उसको कैसे रिक्लेम करना चाहिए। फिर वो टेंडर निकालेंगे, जिसके उसे पार्टिसिपेट करना है करेंगे। जैसे पार्टिसिपेशन हो जाएगा फिर एसेस करेंगे, एसेस करने के बाद वो क्रेडिट देंगे। क्रेडिट देंगे फिर आप उसको रखिए अपने पास, या अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाइए, या फिर उसको बेच दीजिए। कहाँ बेचेंगे? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं। तो एक इस तरीके से ग्रीन क्रेडिट हो सकता है। हिमांशी बोलो। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन, एफएसआईबी, इसी में इंपॉर्टेंट। आईबी ब्यूरो। सो यहाँ पे दी मतलब यहाँ पहले तो उनके मतलब हेड अपॉइंटमेंट और चेयरपर्सन की बात की जा रही है। तो द हेड हंटिंग एजेंसी, इससे पहले जो था हमारे पास बीबीबी था, बैंक बोर्ड्स ब्यूरो। तो उसको एफएसआईबी ने सक्सीड किया है। तो इनका मेन फंक्शन यही है, जो हेड्स होते हैं ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंटली कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो दैट इज द मेन फंक्शन। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस फर्म्स हो गया, तो उसको सक्सीड किया गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे इंटरव्यूज और वो सब, लाइक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का ही मेन यहाँ पे ओवरऑल मोटिव है। पब्लिक सेक्टर बैंक को सेलेक्ट करने के लिए नाम दिया गया है ना, उनके जो हेड है। हाँ। एफएसआई, ठीक है। यस। ये स्टैट्यूटरी बॉडी की एग्जीक्यूटिव, एफएसआई। आई थिंक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और जो नेम सेलेक्ट किए जाते हैं अगेन वो
जो डीएफएस है उनको सेंड किया जाता है, और उसके बाद एक कमेटी है, प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स कमेटी, जो विच इज हेडेड बाय द अगेन प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो वो फिर उसको फाइनली अप्रूव करते हैं। तो ये इसका फंक्शन रिकमेंडेटरी एडवाइजरी इन नेचर है कि ये पर्सन हो सकता है, बट फाइनल अप्रूवल गवर्नमेंट से ही आते हैं, एग्जीक्यूटिव से ही आता है। तो कौन से एक्ट के अंदर में वो कल एक बार देखना है। हाँ एक बार। नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, FSIB वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है नॉर्मली। और इट कम्स अंडर द ऑटोनॉमस बोर्ड है डिपार्टमेंट भाई ऑफ ये। फाइनेंशियल सर्विसेज। ब्यूरो कभी भी स्टैट्यूटरी नहीं होता है। ब्यूरो ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट होता है ministry। हाँ ब्यूरो है लिखा हुआ। ट्रू, सही बात है, थैंक यू। ये डिटेल में दिया हुआ है क्यों यूपी मदरसा एक्ट वॉज जंक्ड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इसको डिटेल में ले लेते हैं। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में उन्होंने लाया, स्ट्रीमलाइन करने के लिए मदरसा एजुकेशन इन अरेबिक, उर्दू, पर्शियन, इस्लामिक स्टडी। स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया गया इसको। और ओवरऑल द बोर्ड वाज देन रिकंस्ट्रक्टेड कंप्राइजिंग ऑफ चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटिंग बोथ शिया एंड सुन्नी। बोर्ड का मैंडेट वो डिग्री देना, पीजी डिग्री, कंडक्टिंग एग्जामिनेशन मुंशी और मौलवी के लिए, टेक्स्ट बुक कोर्सेज, रेफरेंस मटेरियल, अलीम, कामिल, फजील, जो शरिया कोर्ट में बैठते हैं उन लोग को भी। तो क्या चेंज हुआ, तो बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आया तो उन्होंने करिकुलम बस चेंज किया, एनसीईआरटी लाया, साइंस लाया, मैथमेटिक्स किट्स भी लाया, पहले था नहीं उसमें। 2004 के पहले पहले से मदरसा सिस्टम रहते हैं वो, देवर अंडर द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। लेकिन हाँ ठीक है, इसका मतलब कि 2004 में पहली बार लॉ वॉज ब्रॉट इन, स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया गया। पहले एग्जीक्यूटिव थे सिर्फ कि हाँ उनको पढ़ाना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टेट। लेकिन लॉ जो लाए ये एक तरह से वॉलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म है। द एक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू अकाउंट। पहली बात की इट वॉयलेट्स द प्रिंसिपल सेकुलरिज्म, क्योंकि आप मदरसा एक्ट सिर्फ इस्लाम को प्रमोट करें, आप एक प्रमोट नहीं कर सकते। और आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है कि एक माइनॉरिटी को प्रमोट नहीं कर सकते, माइनॉरिटी के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ओनली फॉर प्रमोटिंग प्रोवाइडिंग एजुकेशन इस्लाम। तो स्प्रेड भी नहीं कर सकते, एक वही पहला हो गया। दूसरा कि बाकी जो बच्चे पढ़ते हैं उनके एक आर्टिकल 21A जो है वो हैम्पर होता है। इसका मतलब 15 लाख स्टूडेंट इनरोल्ड इन 13,000 मदरसा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द गवर्नमेंट फंडेड, इनको गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड था मदरसा अभी तक में एक तरह से। हम्म। तो अभी जंक हो चुका है ये, वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लिंक।